given to us. See, receipts and payments account एक दिया हुआ है, नीचे कुछ adjustments दिया हुआ है, and based on that you need to prepare the balance sheet for the year ended as well as surplus or deficiency in the income and expenditure account. So first let's see receipts and payments account में we need to identify first what are the revenue and capital in nature. जैसे मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को बता रहा था कि इसमें रेवेन्यू क्या है और कैपिटल इन नेचर क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा, so that you can directly record in your income and expenditure account as well as in the balance sheet. So let us start first with the income and expenditure account. And the procedure you know it, pro forma heading आप लोग लिख लीजिए. All these things just I'm putting the heading here as income and expenditure account. लेकिन इसका टाइटल मैंने बताया आप लोगों को. Hope you remember that. कि we need to write as income and expenditure account of the so and so. Which company it is, which association it is? Social club. So we need to write here as income and expenditure account for the social club. Social club for the social club, IND account for the social club. So this side will take expenditure and this side will take income. What we previously did. All the rules you should remember what I taught you. Income and expenditure account major rule is this is in nominal nature. So expenditure इधर और income इधर record करते हैं. And second, we record only revenue transactions in this, and that to be pertaining to current year, whether payable, receipt, receivable. So, are you clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So let's Yes, sir. let transaction first. We start with the adjustments. Look at what we have in adjustment. The important adjustment ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है. Adjustment number A. The club has 50 members each, paying an annual subscription of 500. Underline this is very important point. 50 members each है and 500 rupees per month per annum they are paying as a subscription. Subscription outstanding on 31st March 2018 was 6,000. 31st March 2018 का हमारा 6,000 still outstanding है, मतलब आज that date 6,000 outstanding था. This is about outstanding information. So you are taking these subscriptions, all these adjustments have to be considered. On 31st March 2019, salaries outstanding that is related to current year, and I told you current year outstanding क्या करना है? Add होता है. Add करना है. And salaries paid in the year ended 31st March 2019 included 6,000 for the year ended 31st March 2018. यानी 2019 में जो सैलरी पेमेंट किया हुआ है उसमें 6,000 is related to 2018. What is your current year here? 2019. 19 है. So 18 का related मतलब क्या हुआ? It is related to Less करेंगे previous year. Previous year. Previously. On 1st April 2018, the club owned building value 20,000, furniture 20,000, and books 20,000. Sorry, building 2 lakhs, furniture 20,000, books 20,000. That means on 1st April 2018, at the beginning of this year, we had certain assets, and I told you for the purpose of preparation of this, we need a opening balance sheet also. So he has given you the opening balance sheet values. Last year का जो values है वो assets दिया हुआ है. So that means you need to prepare the opening balance sheet here because opening balance sheet is not given in the question. हम लोगों को opening balance sheet question में नहीं दिया है, इसलिए हमें पहले opening balance sheet prepare करना है और उससे हमें capital fund find out करना है balance sheet के लिए. Then provide depreciation on furniture at 10%. So there is no per annum. So straight away 1 year के लिए लेना है हमें 10% furniture का depreciation. And where do you take the depreciation? Depreciation कहाँ लेते हैं हम लोग?
एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड। So let's start with the first. Payment side देखिए salaries दिया हुआ है. So I'm starting with expenditure. The first item salaries. Actually in the receipts and payment account it is given 28,000. Receipts and payments account it is given as 28,000. यानी 2018-19 में सैलरी के लिए हम 28,000 पेमेंट कर दिए. But when you regard it's not about the payment we should regard only the salaries related to current year. So इसमें से यहाँ पे हिंट दिया हुआ है पॉइंट नंबर बी एडजस्टमेंट में 31 मार्च 2019. हेलो हाँ हेलो अच्छा लॉन्च So we need to record current year salaries. So salaries is given as here 28,000 which is paid for the current year. But adjustment में बता रहा है कि on 31st March 2019 salaries are outstanding. 31st March 2019 यानी current year है और current year का outstanding what we do? Add. क्या करना है? Add करना है. So plus outstanding for 2019 यानी current year के लिए. So how much it is given? 2,000. So 30,000 in the column ले रहा हूँ because there is a one more adjustment is given in the question. Yes. What is that Yes, sir. adjustment? Out. Salary paid in the year 31st March 2019 included 6,000 for the year ended 31st March 18. यानी इसमें 6,000 लास्ट ईयर का इंक्लूडेड है. तो क्या करना है? माइनस. Minus. Good. So minus outstanding for 2018. 6,000 minus करो. Whatever comes you should record here. 24,000 हमारा salaries current year के लिए है. That means salaries though we paid 28,000 in the current year, but actually current year related salaries are only 24,000 because there was 2,000 of the current year is outstanding and 6,000 of previous year was paid in the current year. तो ये दोनों को adjustment करने के बाद it is very clear that salaries of current year is only 24,000. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good, very good. So what is next one? General expenses. And is there any adjustment for this? No, sir. No, sir. So we will take directly 6,000. And then electricity charges. To electricity charges. For this also there is no adjustment. So I am taking directly 4,000. And then books are given here. Books means I told you already books is an asset. जैसे library हो या books हो, these are all the assets. Okay, so books we consider it as an asset, so we don't take here. आपको बताया गया purchase of an asset is a capital in nature because it will be used for more than 1 year, and that's the reason we don't regard in income and expenditure account. उसके बाद दिया है newspapers. Yes, newspapers is a regular expenditure revenue, and there is no adjustment to this, so I'm taking directly 8,000. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so balance तो नहीं लेते हो लोग, I told you already.
this account will not begin with any balances. So हमें balances नहीं लेना है, R&P का balances को हमें balance sheet में बताना है, यहाँ नहीं बताना। Now coming to the receipt side, balance दिया हुआ है, we don't consider, this is previous year cash balance है, तो previous year balance sheet में आएगा। Subscriptions इस बार मिला के नहीं दिया है, अलग अलग दिया है, so when it is given separately, we should take current years only. 17-18 is given, that is last year's. 18-19 is given, that is current year. 19-20 is given, that is next year. So हमें कौन सा लेना है actually? Current year. 18-19 करंट ईयर 18-19 का लेना है। लेकिन एक क्वेश्चन देख लीजिए वहां पे, पॉइंट ए सर आवाज सर वॉइस कट रही है। अभी आ रहा है? यस सर। yes आ रहा है ना वॉइस क्लियरली? यस सर। yes sir तो क्लब में कितने मेंबर्स हैं? 50। 50 क्लब में 50 मेंबर्स हैं। एंड हाउ मच ईच इज पेइंग? 500। कितना होता है टोटल? 25,000। तो इसका मतलब क्या है? एवरी ईयर आवर सब्सक्रिप्शन शुड बी 25,000, राइट? यस सर। लेकिन बुक में कितना दिया है? 20,000। 20,000 व्हाट डज इट मीन? 5,000 outstanding 5,000 आउटस्टैंडिंग है। सो यहाँ पे क्या पता चला आप लोगों को? एक्चुअली हमारे पास 50 मेंबर्स है और 500 रुपीस पर मेंबर पेमेंट किया जा रहा है। So every year our income should be 25,000. But when we see in our book, it is given that current year we have received only 20,000. तो हमारे 5,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है। यहाँ वर्किंग करवा रहा हूँ, आपको दिखेगा यहाँ पे? Is it visible if I write here? yes यस सर। Okay, I'm writing here as subscription income. 50 members into 500, 25,000. Minus receipt, 20,000. 5,000 is outstanding for current year. This I am showing so that in future also you remember this point, and this will be a additional point to be shown in this. So it's a working note type. Are you clear? So जब subscriptions यहाँ yes sir whenever you show subscriptions here, first you write here as 20,000 for the current year, plus you write outstanding 5,000. So you have to show 25,000. अब क्वेश्चन ये है कि प्रीवियस ईयर के भी दिया हुआ है, नेक्स्ट ईयर का भी दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेपरेटली दिया हुआ है। And we have to record only current year income. Current year income should be 25,000 only, क्योंकि 50 members 500 each. सर बोलो। सर अभी आउटर कॉलम में कैसे लिख सकते हैं? अभी आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे ना? कैसे माइनस करेंगे? सर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 6,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो। तो प्रीवियस ईयर का इसमें मिला हुआ है क्या? 25,000 में इसमें प्रीवियस ईयर का मिला हुआ है? नो सर, ये तो इसी ईयर का है। वही है, मैंने कल भी प्रॉब्लम जब एक्सप्लेन किया था बताया था। यहाँ पे प्रॉब्लम 17-18 का अलग, 18-19 का अलग, 19-20 का अलग लिया हुआ। अगर आप लोग यहाँ सब्सक्रिप्शन 29,000 लेते हैं, जो ऑर्डर कॉल किया 29,000 देखिए सब्सक्रिप्शन, अगर आप लोग 29,000 लेते हैं तब आपको प्रीवियस ईयर का माइनस करना है, करंट ईयर का प्लस करना है, नेक्स्ट ईयर का भी माइनस करना है, ये सब एडजस्टमेंट करना है। कब माइनस करना है? जब इंक्लूडेड रहे। जब हम ले रहे हैं डायरेक्ट करंट ईयर का ही ले रहे हैं ना, तो इसमें कोई इंक्लूडेड नहीं ना, तो व्हाई शुड वी सब्ट्रैक्ट करंट ईयर, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। ओके सर। प्रीवियस ईयर में ऐड होता है, यहाँ नहीं था। यहाँ माइनस कब होगा?
we will subtract only when it is included in this. इसमें तो included ही नहीं ना, separate ही दिया हुआ है ना. Clear? Yes, sir. Okay. Now 25,000 is over. Next income क्या है हमारा? Higher of ground. समझ में आया कुछ हायर ऑफ ग्राउंड का? Yes, sir. चलिए एक अमर विद्यालय का ग्राउंड आप लोग देख लीजिए. सर वॉइस फिर कट रही है. नहीं कटेगी. अभी क्लियर है? Yes, sir. अभी वॉइस Yes, sir. आ रहा है ना वॉइस? Yes, Yes, sir. sir. Voice आ रहा है. Now what I want to say is कि हमारे यहाँ जब हायर ऑफ ग्राउंड यानी स्कूल का ग्राउंड तो देख लिया क्या आप लोगों ने? यस सर. तो स्कूल का ग्राउंड अभी खाली है. सपोज मान के चलिए कोई बाहर वाला अपने ग्राउंड में कुछ गेम्स कंडक्ट करना चाहता है. If he wanted to conduct a game in our ground, so ऐसे ही मालूम है उन लोगों को हम कुछ रेंट देंगे, यानी फॉर वन डे यू टेक आवर ग्राउंड एंड यू पे अस द रेंट. तो एसोसिएशन है हमारा. तो आपके पास अगर ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड है, यू कैन गिव योर ग्राउंड टू समबडी एंड यू कैन टेक द इनकम. यू कैन कंसीडर दिस एज एन इनकम. जैसे मैचेस होते हैं ना, बाहर ग्राउंड में मैचेस होते हैं, तो कोई अगर अपने ग्राउंड में मैच कंडक्ट करना चाहता है तो वी विल गिव आवर ग्राउंड ऑन ए रेंट बेसिस. हायर का मतलब हो गया रेंट. सो वी आर गिविंग अ रेंट ऑफ आवर ग्राउंड एंड व्हिच वुड बी ए इनकम फॉर अस. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 14,000 हमारे लिए हायर ऑफ ग्राउंड इनकम हो गया. दूसरा क्या है? सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स. मैं सरप्लस लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिए बिकॉज़ कंस्ट्रेंट स्पेस कंस्ट्रेंट है. सो आप पूरा लिख लीजिए सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स. यानी हम लोग कुछ एंटरटेनमेंट इवेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें इनकम ले रहे हैं. जैसे एंटरटेनमेंट इवेंट यानी कल्चरल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं सारी पब्लिक को. एक क्या बोले सर हायर ऑफ ग्राउंड का क्या बताए, फिर से रिपीट कीजिए. रेंट ऑफ ग्राउंड मतलब रेंट ऑफ ग्राउंड. अपने पास ग्राउंड है, ओपन प्लेस है, हमारा ग्राउंड किसी और को रेंट दिए हैं हम लोग ओके सर. गेम्स कंडक्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम चार्ज करते हैं, वो हमारा रेंट हो गया, इनकम हो गया. क्लियर? यस सर. और सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट यानी वी हैव कंडक्टेड सर्टेन entertainment programs, like there may be a chance of cultural activities, or we have invited a mimicry artist here and we asked him to do a mimicry. We invited a general public by collecting the ticket fare. ऐसे चैरिटी शो ऑर्गेनाइज किए, तो जिसमें हम लोग खर्चा भी कर रहे हैं और इनकम भी आ रहा है. और वो इनकम अगर हमारे खर्चे से ज्यादा होता है, if our income is more than our expenditure, we call that as surplus. तो उस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का जो भी सरप्लस है that will be an income for us. So we regard it as surplus. How much is the surplus? How much is the 8,000. 8,000. No, there is one is given sale of Old newspaper. ओल्ड न्यूज़पेपर्स. ये तो हमारा कॉमन रेगुलर इनकम है, आपको पता है ये. एंड 2000. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लियर करने के लिए रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जितने भी दिए हुए हैं वी हैव टेकन इट, राइट? सो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में व्हाटएवर रेवेन्यू आइटम्स गिवन वी हैव रिकॉर्डेड. लेट्स सी वंस एडजस्टमेंट में कुछ मिस हो गया. एडजस्टमेंट नंबर 1 बता रहा है सब्सक्रिप्शन के बारे में, व्हिच वी हैव ऑलरेडी एडजस्टेड.
Adjustment number 2 is talking about salaries, which we have already done it. Adjustment number 3 is about the previous year assets. Previous year assets, and that we have to consider in while preparing the balance sheet. So वो assets है हमारा balance sheet preparation के लिए हम we will consider it for the balance sheet preparation, we don't take. लेकिन last में एक point दिया है, what is that? Depreciation 10% Depreciation on on furniture. furniture. हाँ, depreciation तो expenditure है हमारे लिए. Yes. Depreciation Yes, sir. फर्नीचर कहाँ है? So 20,000. हाँ, फर्नीचर डिप्रिसिएशन 20,000 जो दिया हुआ है, आप पॉइंट नंबर 3 एडजस्टमेंट में देखिए 20,000 में 10% यानी कितना होता है? 2,000. 2,000. So that's all. पूरे हो गए. Now you have to check which side is more. So debit side. वैसे 30 44 इधर हो रहा है. Yes. उधर 39. वहाँ 39 25 14 82 49 हो रहा है इधर. इधर कितना हो रहा है? No sir, credit side ज्यादा sir. क्रेडिट 49,000 हो रहा है. This side is more. और 5,000 में डिफरेंस आ रहा है. This you should call it as surplus. Surplus. That is excess of income over expenditure. Excess of income over expenditure. Surplus. हो गया? Yes, sir. Yes sir. Any question that you have? No sir. Okay. So shall I remove? Yes, sir. तो हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा ना? Yes, sir. Yes sir. To prepare the balance sheet, we need the capital of the previous year. और यहाँ पे याद रखिए, sole trader में it is related to the owner. That's the reason we call it as a capital. लेकिन NPO में हम उसे capital नहीं कहेंगे because it is not related to owner. It is related to the association. So we should call it as capital fund. हम उसे बोलते हैं capital Fund. क्योंकि this is an amount which will be used for the society's activities, club activities या organizations activities. हमारे organizations activities करने के लिए अगर हमारा इनकम मतलब बाहर से कोई इनकम नहीं मिल रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो इसमें से हम यूज कर लेते हैं. और हमारे पास अगर कुछ सरप्लस बच गया तो इसमें ऐड करते हैं. So this will be a fund which will be used for the purpose of activities whenever there is a need. क्योंकि हर साल क्या कर रहे हैं हम, कुछ इनकम आ रहा है, कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है. तो जो इनकम आ रहा है तो एक्सेस भी हो सकता है, ज्यादा इनकम होगा तो that will be kept aside for the future. That is called capital fund. Capital fund. Clear? So हमें क्या करना है, कैपिटल फंड प्रीवियस ईयर का कितना है फाइंड आउट करना है. If it is a new organization, then whatever surplus you get in the current year is the capital fund for your future. But this is already running organization, so there might be a capital fund at the beginning. Previous में कुछ capital fund होगा. Now you need to identify what was the capital fund in the previous year. Previous year में क्या capital fund था आपको identify करना होगा. Now how do you identify? Generally I told you at the beginning, आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया जाएगा और एडजस्टमेंट्स. Did I teach you this? Yes, sir. Yes sir. यही बताया मैंने आप लोगों को. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है? No sir. No, sir. नहीं दिया हुआ. अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दिया होता तो उसमें कैपिटल फंड रहता है, उसको हम ले लेके डायरेक्ट कर लेते हैं. बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस शीट. तो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस शीट.
So I'm preparing the balance sheet. Balance sheet as on बोलते हैं ना हम लोग Yes, sir. As balance at. sheet Yeah, as on. As at. expenditure receipts and payment account for the year ended करते हैं P&L for the year ended करते हैं trading for the year ended करते हैं but balance sheet As on या as As at. on. या तो as at तो as on हम प्रिपेयर कर रहे हैं 31st March 2018 या आप लोग इसको बोल सकते हैं ओपनिंग है से 1/4/2019 1/4/2019 that means opening और बैलेंस शीट 1/4/2018 ना 1/4 2018 होगा ना. नहीं है अच्छा हमारा अच्छा 31st March 2019 में बोल रहा ना ओके ओके फाइन वेरी गुड 1/4/2018 से लेके 31st March 2019 वेरी गुड दिस इज ओपनिंग राइट नाउ प्रोफार्मा तो आप लोगों को पता है लायबिलिटीज रुपीस असेट्स रुपीस राइट Yes. तो इस बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए आप लोग तो रूल जानते हैं कि इधर लायबिलिटीज आएगा इधर एसेट्स आएगा बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनपीओ फर्स्ट यू शुड स्टार्ट ऑलवेज विद द कैश बैलेंस हमेशा याद रखिए जैसे ही बैलेंस शीट आप यहां ड्रॉ करेंगे पहले आप बैलेंस आप कैश से स्टार्ट कीजिए वेयर डू यू गेट दिस कैश बैलेंस Opening balance. कहां Receipts Receipt and and payment. payment. very good excellent receipts and payments account is our cash book and the opening balance of receipts and payments account is opening cash balance or closing balance of receipts and payments account is closing balance तो opening balance होगा opening balance sheet में and closing will come in closing balance sheet are you clear Yes, Yes, sir. sir. balance पहले लेंगे हम कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है 7,000. 7,000 अब आप आर एंड पी में देखिए कोई डाटा प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है क्या रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में चेक कीजिए Yes, sir. Subscription. सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है चेक कीजिए सब्सक्रिप्शंस क्या बता रहा है 2017-18 का कितना बता रहा है 5,000. 5,000. 5,000 राइट Yes, sir. लेकिन एडजस्टमेंट में देखिए ऑलरेडी इसके बारे में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018 पर 6,000 बता रहा है इसका मतलब क्या है Asset है. Previous year का ये. इसका मतलब मुझे समझाइए आप जब रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में देखे हैं 2017-18 का 5,000 बता रहा है ना 5,000 Yes, sir. लेकिन एडजस्टमेंट में क्या बता रहा है सब्सक्रिप्शन 6,000. मार्च 6,000 बता रहा है इसका मतलब समझ में आया So Yes, sir. receipts and 11. payment में जितना 17-18 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया वो दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग जितना था वो दिया हुआ है. अब तो इससे क्या पता चला आप लोगों को 11,000 सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. 11,000 सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का. यही तो बता रहा हूँ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का मतलब क्या है करंट ईयर में जितना भी रिसीव हुआ हम रिकॉर्ड करते हैं am I right नो सर Yes, कभी sir. कभी होगा तो उसको ऐड कर देते हैं. अरे मैडम अरे आप लोगों को क्या समझाया रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का मतलब क्या है सर कोई भी कैश रिसीव्ड और पेमेंट हुआ उसको रिकॉर्ड कर देना वो किसी भी ईयर का हो. करेक्ट ना कोई भी ईयर का हो रिसीव हुआ तो डेबिट पेमेंट हुआ तो क्रेडिट ना Yes, तो sir. यस सर. 2017 की ये मतलब क्या है करंट ईयर में रिसीव किए ना आप लोग Yes, sir. तो इसका मतलब ये है 5,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का आज तुमने रिसीव किया करेक्ट Yes, sir. यस सर. तो मतलब ये है कि 6,000 आउटस्टैंडिंग में से ऑलरेडी आपने 5,000 रिसीव कर लिया यस सर. Yes, sir. और स्टिल आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर 1,000 होगा. हाँ ठीक है 1,000. लेकिन लास्ट ईयर के डेट पे कितना आउटस्टैंडिंग था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 6,000 वर आउटस्टैंडिंग
लास्ट ईयर का कंसीडर कीजिए ना, 1 अप्रैल तक कितना आउटस्टैंडिंग था? 6000। करंट ईयर में 5000 रिसीव कर लिया आप लोगों ने और 1000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो उसके बारे में बाद में समझाऊंगा क्यों ये डिफरेंशिएट किए हम लोग, 5000 1000 क्यों बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, लास्ट ईयर में कितने आउटस्टैंडिंग था? 6000। 6000। आउटस्टैंडिंग इधर ही आता है ना, असेट ही है, नंबर लिए यस सर। यस सर। कैसे हो गया? क्या बोले सर? यस सर। हाउ इट इज एन असेट, व्हाई यू क्योंकि हम कंसीडर इट एज असेट? लोग रिसीव होगा ना। रिसीव करना हम ये लोग को। हाँ रिसीवेबल है, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम, और आउटस्टैंडिंग का मतलब है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब है आउटस्टैंडिंग इनकम, एंड आउटस्टैंडिंग इनकम मींस इनकम रिसीवेबल इन फ्यूचर इज एन असेट। क्लियर? अब रिसीट्स एंड यस सर। पेमेंट्स यस अकाउंट सर। में प्रीवियस ईयर का कोई रिसीट्स एंड नो पेमेंट्स सर। अकाउंट में प्रीवियस ईयर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं। नो सर। नो और सर। का हमने ले लिया। एडजस्टमेंट नंबर 2 में देखिए, लास्ट ईयर का सैलरी आउटस्टैंडिंग था ना, यस यस सर। सर। तो कितना, हाउ मच वाज आउटस्टैंडिंग? 6000। 6000, क्योंकि इसमें बताया गया सैलरी पेड इन 2019 includes salary outstanding for 2018 6000 बता रहा है, यानी लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग 6000 था वो करंट ईयर में हमने रिसीव कर लिया, लेकिन एज ऑन 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग था। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए लायबिलिटी फॉर अस, क्योंकि सैलरी इज एन एक्सपेंडिचर, outstanding salary is a outstanding expenditure and that will be a liability for us, that is 6000. Clear? यस यस सर। सर। और पॉइंट नंबर 3 में क्या बता, on 1 फर्नीचर। April 2018, फर्नीचर। 1 April 2018, हाँ ये सारे असेट्स थे, तो हम लेंगे फर्नीचर 20000, और क्या है, बिल्डिंग बिल्डिंग 2 lakhs, और बुक्स 20000। हो गया? हो गया ना? आर यू फॉलोइंग? यस सर। यस सर। अभी एक्चुअली एज पर द रूल आप लोग जानते हैं, एज पर द बैलेंस शीट इक्वेशन एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी सेम, यस सर। राइट? लेकिन इस प्रॉब्लम में कैपिटल इज मिसिंग, कैपिटल फंड इज मिसिंग, दैट्स व्हाई इट विल नॉट टैली। लेकिन जो यस डिफरेंस आएगा वो बोलेंगे कैपिटल फंड। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, मैं लिख रहा हूं यहां पे BAL.FIG बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि दिस विल इंडिकेट दैट वी हैव टेकन द बैलेंस। व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस साइड? 2,53,000। 53,000। 2 lakh 53,000। 53,000। 53, yeah, 2,53,000, इसमें से 6000 माइनस करेंगे तो 2,47,000। 2,47,000। दिस इज आवर कैपिटल फंड। आर यू क्लियर? यस सर। यस। यस सर। एनी क्वेश्चन दैट यू हैव? नो सर। रिमूव? यस सर। यस सर। चलिए अभी हम बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करेंगे। करंट बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019
हम प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 का हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। सो हाउ टू प्रिपेयर दिस? इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें पहले you need to start with the same logic cash balance। आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है? 4000। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पे कैपिटल फंड। कितना है कैपिटल फंड? 2,47,000। 47,000। और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, चेक योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इफ यू हैव a surplus, add to this, and if you have a deficiency, subtract from this। check your Surplus problem 5,000. Surplus yeah, we will add surplus here 5,000, so total will be 2,52,000। 2,52,000। Is this clear? Yes sir। Yes, sir. ओके। अभी हमें आगे कैसे रिकॉर्ड करना है? बैलेंस शीट फिलअप करने के लिए फर्स्ट यू कीप योर ओल्ड बैलेंस शीट इन फ्रंट ऑफ यू। अभी हम ओल्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया ना, ओपनिंग वाला। Yes sir। that you keep in front of you, based on that first you fill up the columns। आप उस बैलेंस शीट में एसेट साइड देखिए, चेक आउट ऑन द एसेट साइड। व्हाट इज द फर्स्ट आइटम ऑन द एसेट साइड? One cash. Cash balance। कैश इज ओवर। Subscription. Yes, sir. उसके बाद क्या है? Subscription outstanding। So I am taking subscriptions outstanding here, right? Subscription outstanding current year का कितना दिया है? 20,000। 2,000. 2019 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कितना है? 2,000. 2,000। कहाँ 2000? आप लोग प्रीवियसली वर्किंग नोट देखिए ना, आप ही तो बोले हैं 50 मेंबर्स हमारे पास है, 500 दे आर पेइंग, सो टोटल 5,000। 5,000. 5,000। We have calculated na, just check it out। 50 members are there in our association, each paying 500 rupees, each paying 500 rupees, and actually we have received only, how much we have received? 20,000. 20,000। 1,000। So 5,000 are still outstanding for us for the current year, so that will be an asset for us। Now one more Yes, we sir। have to recover, as on today, last year's also 1,000 is still outstanding। Am I right? Yes, sir. Yes sir। Adjustment, it was given that there was outstanding of 6,000 subscription in the previous year, but receipts and payments account says only 5,000 received so far for the last year, so 1,000 is still outstanding for the previous year also। When you are preparing balance sheet as on this date, आज के डेट पे जितने भी assets है, जितने भी liabilities है, we have to record, whether they are related to current year, previous year, इससे कोई मतलब नहीं। So 5,000 plus 1,000 total, clear? Yes, sir. Yes sir। Okay, now go to the next point। subscription के बाद क्या है? Furniture। फर्नीचर है हमारे पास, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में एक बार चेक कर लीजिए। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में दिया जाएगा परचेज ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर। अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट है तो फर्नीचर का एडजस्टमेंट करना है। चेक इट आउट इन पेमेंट साइड, डू वी हैव एनी फर्नीचर? No, sir. No sir। नो। पेमेंट फॉर फर्नीचर मींस वी हैव नॉट येट फर्नीचर परचेज्ड, कोई फर्नीचर हमने परचेज नहीं किया। Now check out on the receipt side, do we have any furniture? No sir। No, that means we did not sell any furniture। मतलब लास्ट ईयर जो हमारे पास फर्नीचर था वो ऐसे ही है, हमने सेल नहीं किया, हमने परचेज।
बट सर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? हाँ, इसलिए इनर कॉलम में लिखा हूँ, वही करना है, माइनस डेप्रिसिएशन 2000 हमें माइनस करना है, तो 18,000 हम ले रहे हैं। 20,000 furniture was there in the previous year. We did not purchase anything. अगर परचेज करते हैं तो इसको प्लस करना है, and we did not sell anything. If you would have sold, we should subtract from this, and then we need to subtract the depreciation also. But in the current question, we did not have any sale, we did not have any purchase, so no adjustment for those, but we have only depreciation which we are subtracting. Clear? यस सर। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग में कोई, अगर फिर से चेक करो, पेमेंट साइड कोई बिल्डिंग परचेज किए हम? नो सर। नो सर। अगर पेमेंट साइड है इसका मतलब परचेज, रिसीट साइड है इसका मतलब सेल। चेक करो दोनों साइड है क्या? नो सर नहीं है। नो परचेज, नो सेल, नो डिप्रिसिएशन आल्सो, तो इसका मतलब जितना था उतना ही है, 2 lakhs. There is no change in this. Next asset, बुक्स बुक्स। books. देखो 10,000 है सर। 1000 है। पेमेंट साइड है, इसका मतलब हम परचेज किए हैं, सो परचेज करने से क्या होता है? प्लस ऐड। यस सर। में हमारे पास 20,000 था, प्लस परचेज 10,000। सेल में देखिए कोई सेल कर रहे हैं क्या? नो सर। डिप्रिसिएशन? नो सर। नो, तो वेरी गुड, केवल हमें परचेज का ऐड करके दिखाना है। और कोई ऐसे? नो सर। नो सर। नहीं है ना? नो सर। एसेट साइड खत्म हो गया। अब लायबिलिटी से देखिए हमारा कैपिटल फंड हो गया, उसके बाद लायबिलिटी में आप देखिए क्या लिखा हुआ है आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है। हाँ, तो यहाँ पे भी होगा ना सैलरी आउटस्टैंडिंग। यस सर। करंट ईयर का कितना है? 2000। 2000। नंबर 1 में देखिए सैलरीज 2000 आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, 2000 हो गया। तो आपका यस सर। ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया ना? डिड यू फिनिश योर ओपनिंग बैलेंस शीट? यस सर। यस। Now what you have to do is, now first you check ओपनिंग बैलेंस शीट खत्म होने के बाद रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में एक बार चेक कीजिए, all the items of receipts and payments account whether we have taken income expenditure and balance sheet or anything is left over. तो पहले रिसीट्स एंड पेमेंट्स में पेमेंट साइड देखिए, salaries we took it in IND, general expenses we took it in IND, electricity charges we took it in IND, books we took it in balance sheet by adding here, balance newspapers we took it in IND, balance we have started here, this balance 7,000 we took it in opening balance sheet, सब्सक्रिप्शन में 2017-18 का हमने प्रीवियस बैलेंस शीट में ले लिया, लेकिन 18-19 का हम करंट ईयर में ले लिए, बट 2019-20 का हम कहीं नहीं लिए। सो व्हाट इज दैट एक्चुअली 2019-20 का? 2019-20 मतलब क्या है? नेक्स्ट ईयर। यस सर। नेक्स्ट ईयर मतलब करंट ईयर के लिए एडवांस यस सर। यस सर। लाइबिलिटी। would be a liability. Very good. Subscriptions received in advance. कितना है वो? 4,000। 4,000 हो गया। उसके बाद यस सर। हायर हम ले चुके, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट हो गया, ये सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी खत्म। एडजस्टमेंट में हर एक एडजस्टमेंट दो बार लिए हम, सब्सक्रिप्शन हो गया,
भी हो गया, असेट्स हम ले चुके हैं, डिप्रिसिएशन भी हो गया. We need to close both the sides. That 58,000. 2 lakh 58,000. Tally. This is the complete problem of NPO, income and expenditure account, opening balance sheet and closing balance sheet. And I sent a video yesterday regarding the preparation of RNP, receipts and payments account का कैसे prepare करते हैं, उसका वीडियो भी मैंने सेंड किया आपको. So cross check कर लीजिए एक बार, कोई डाउट होगा डिस्कशन होगा. कल और दो प्रॉब्लम I wanted to discuss based on this so that your concept will be clear. कल के लाइव क्लास में I'll be discussing 2 problems or 3 problems. 1.5 hour class होगा कल भी, and I'll be discussing 2 to 3 problems based on the preparation of only income and expenditure accounts. This because in your board exam 90% 99% only income and expenditure will be asked. So ये भी प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही आएगा. और बैलेंस शीट तो पता ही है, हम लोग ऑलरेडी सोल ट्रेडर में कर चुके हैं. नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ टू डू इट. सो डू सम illustrations on this. Okay, I'll be sending you some illustrations for practicing, but tomorrow I'll be teaching 2 problems of income and expenditure account in a live class. उसके बाद हम मंडे से स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, that is partnership. Very important. Is this clear till now? Yes, sir. Yes, sir. Do you have any questions? No, sir. चलो ठीक है फिर. Let's conclude the class now. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. We'll be discussing in tomorrow's class. Okay.